Hallelujah. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doeth he meditate day and night. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doeth he meditate day and night. I pray today, Lord, keep your children from every ungodliness. Keep your children away from every ungodliness. Let their delight be in the law of the Lord, and let them meditate on it day and night. Once again, we ask, Lord, forgive us. Forgive us if ungodliness has creeped in. If ungodliness has creeped in our thoughts, in our hearts, in our words, forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Once again, wash us with your precious blood, so that we might be clean as white as snow. Thank you. I thank you. Commit all of us into your loving hands. Once again, seal this house by the blood of Jesus. Thank you, Lord. I thank you. I thank you. In Jesus' name, amen. Jesus. Thank you, Father. The things we carry with us, जो चीजें हम अपने साथ लेके चलते हैं, चीजों का मतलब जो सामान आपका वो नहीं, जो सोच हम लेके चलते, जो ध्यान हम करते हैं, right? The thoughts that we meditate, right? Sometimes they become a burden to us. कई बार वो हमें एक वजन सा लगता है बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आते आते वो इतना वजनदार हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि क्या वजन है जो मैं लेके चल रहा हूं। समझना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि क्या वजन है जो मुझे पता नहीं चल रहा है। There's a burden sometimes we carry and we don't know what that burden is. बहुत ही सिंपल सा रहेगा, बहुत ही negligible रहेगा, but still when it becomes a burden, you will start feeling its effect. Amen. किसी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था
एक बॉटल में हाथ में पकड़ो छोटा सा, कितनी कुछ नहीं लगेगा मुझे। अगर वही बॉटल अगर मैं 1 घंटा 2 घंटा पकड़ूं तो मेरा हाथ जरूर दुखने लगेगा। उसका वेट नहीं बढ़ा, बॉटल का वेट नहीं बढ़ा, because you carried it for a longer time. It started becoming heavy. Because you carried it for a longer time, it started becoming heavy. कुछ चीजें हमारे जिंदगी में हम अगर उसे बहुत समय तक उसको लेके चलेंगे तो एक दिन जरूर वो आपके लिए भार बन जाएगा। Amen. Hallelujah. I know I am speaking to some of you and you are understanding it. आप समझ रहे मैं जो बोल रहा हूं ये आपके लिए है। And God says it's not a clean thing, it's an unclean thing. मैं बता नहीं सकता कि क्या दिखाया परमेश्वर ने। एंड ही सेड इट्स एन अनक्लीन थिंग। पता है हमको जब कीचड़ लगता है तो आपको अच्छा लगता है? कोई गंदी चीज अगर उड़ के आती है आपको यू वांट टू शेड इट ऑफ इमीडिएटली, तो क्यों लेके घूमते हो उसको साथ में? आपको पता है गंदी चीज है तो निकाल दो ना उसको। Don't carry it for a longer time. Don't carry it for a longer time. जब तक बोझ बन जाए इतनी देर तक तो मत रखो उसको। Amen? पता है लग जाती है, कुछ चीजें लग जाती है, कुछ चीजें आ जाती है जिंदगी में, लेकिन निकाल फेंक दो उसको before it turns unclean for you. Hallelujah. बाइबल में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने कई बार है ना he rebuked the unclean spirits. तो कई बार मुझे लगता था unclean spirit का मतलब क्या होता है? unclean spirit का मतलब होता है जो गंदी चीजें होती है, जो गंदा हम लोग देखते करते वो unclean। नहीं, परमेश्वर के लिए बोलता है वो गंदा ही है, उसको अभी गंदे को वो कोई बड़ी बात नहीं है। But when God tries to define unclean, He says that which is not supposed to be attached to you. सिंपल सी बात, जो चीज तुम में जुड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं रहना चाहिए मेरी जिंदगी में, मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे सोच में, no, it starts becoming unclean. Starts becoming unclean. Before that, cut it off. Hallelujah. Amen. Can we pray one more minute? मुझे नहीं पता क्या चीजें हैं जो आपके लिए बोझ सा बन गई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बुरी चीजें हैं, लेकिन वो that are not supposed to be with you, वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुमसे जुड़ी हुई रहना ही नहीं है। Before it becomes a burden and before it turns unclean for you, today cut it off and remove it from your life. Oh Father, every heart that is crying out now, हर एक हृदय जो तुझसे मांग रहा है, पूछ रहा है, unwanted burdens, I rebuke it in Jesus' name. Unclean burdens, I rebuke it in Jesus' name. Set your people free in the mighty name of Jesus. Be cleansed
by the blood. Be cleansed by the blood. In the mighty name of Jesus. Yes. You are the temple of the Holy Spirit. You are the temple of the Holy Spirit. Keep your temple clean. Keep your temple clean. Keep your temple clean. Thank you, Master. I thank you. Do it, Lord, for your name's sake. Give grace to your children, oh Father. Give grace. Give grace to get rid of everything that is weighing them down. जो चीजें तुम्हें नीचे की ओर खींच रही है, उस हर एक चीज से परमेश्वर तेरे बच्चों को छुटकारा दे दे आज. हर एक वजन चीजें जो उन्हें नीचे खींच रही है, उससे छुटकारा दे दे परमेश्वर आज, यीशु के नाम से. तेरा लहू उन्हें धोकर फिर से आजाद कर दे परमेश्वर, तेरे नाम के लिए, तेरी महिमा के लिए. यीशु के नाम से मैं मांगता हूं. आमेन. Amen. Amen. Thank you, Lord. I thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. So चलेंगे हम लोग next. Matthew 6th chapter 12th verse. मत्ती उसका 6वां अध्याय 12वां वचन. Yes, read for me. स्टार्ट कैसे हुआ? हमारे किंग जेम्स starts with and. Hallelujah. मराठी में है शायद. Yes. हिंदी में भी नहीं है, कन्नड़ा में भी नहीं है, राइट? मराठी में है, किंग जेम्स में है, राइट? एक बार पढ़ना उसको. हाँ हाँ. Yes. Hallelujah. In English it says, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Right? So आज इंट्रोडक्शन रहेगा. So we will continue. पता नहीं मुझे, मत पूछो कितने एपिसोड होंगे, राइट? So we will see. It depends on your hunger. तुम्हारी भूख के ऊपर होता है. अगर आप भूखे हो तो परमेश्वर देता जाएगा, मैं बांटता जाऊंगा. मेरा काम सिर्फ बांटना है, राइट? अगर भूखे है तो ज्यादा मिलेगा, नहीं है तो 2 एपिसोड में खत्म हो सकता है. यस. ओके. सो बट जब मैं उसको ध्यान कर रहा था, सो इट स्टार्टेड विथ एंड. इट स्टार्टेड विथ एंड, राइट? ग्रीक में भी, ओरिजिनल में भी है. ग्रीक में इसका एंड का वर्ड है काय, KAI, राइट? घर जाके आप होना है तो गूगल में चेक कर सकते हो पूरा मैथ्यू 6:12 का. ग्रीक में अगर ये वर्स पढ़ेंगे, इट हैज डिफरेंट थिंग्स, राइट? एक्चुअली इसको स्टडी मैंने पहली बार ग्रीक में किया था. ओके. सो लेकिन डरो मत, ग्रीक में नहीं बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा. Okay, so the original word for and is kai, right? KAI. Spelling ऐसे आता है, लेकिन pronunciation होता है kai. K, I mean not the K, it becomes K, right? It is called as and. English में अगर कहूँ तो what is and? Grammar.
इट्स ए कंजंक्शन। अभी कंजंक्शन का डेफिनेशन बोलना पड़ेगा, ठीक है। समथिंग दैट जॉइंस द प्रीवियस वन विद द नेक्स्ट वन, पहले वाले को दूसरे वाले के साथ जोड़ने वाला, राइट, अलग करने वाला नहीं, जोड़ने वाला है। सो अगर परमेश्वर यीशु मसीह जब सिखा रहा था, हमको बोला 11वें वचन में, आज की रोटी आज तू हमें दे दे, और हिंदी में और बोल सकता हूं मैं, ठीक है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ किया, हाँ, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसके बाद का नेक्स्ट वर्स, और राइट, सो देयर आर टू एंड्स इन दीज 3 वर्सेस। इन 3 वचनों में 2 बार एंड को यूज किया है। इसका मतलब ये 3 जो स्टेटमेंट्स है जो यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने के लिए बोला था, इसको सेपरेट नहीं कर सकते। मेडिटेशन के लिए सेपरेट करो, राइट, ध्यान करने के लिए सेपरेट करो, लेकिन जब समझ में आना है उससे, तो ये तीनों मुझे एक साथ देखना पड़ेगा। हालेलुया। तो चालू कहां से होता है? गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड and forgive us our debtors as we have forgiven those our debtors, right? फिर and lead us not into temptation but deliver us from evil। खत्म हो गया? नहीं, and का खत्म हो गया, and खत्म हो गया। so नहीं, वो सेंटेंस अलग होता है। सेंटेंस का बीच का एंड अलग होता है सेंटेंसेस के बीच के एंड अलग होता है, राइट? ओके, मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूं लेकिन इतना समझना है हमें, ये 3 जो सेंटेंसेस है, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड एंड फॉरगिव अस आवर ट्रेसपासेस एज वी हैव फॉरगिवन those who trespass against us, and lead us not into temptation but deliver us from evil। all these 3 sentences are joined together, okay? तो जब परमेश्वर इनको जुड़ा रहा है, जब यीशु मसीह कह रहा है आज का रोटी दे दे बस खत्म नहीं, उसने क्या किया? उसको और बढ़ाया, बोला एंड। तो रोटी मांगने से तेरी प्रार्थना खत्म नहीं हो गई, हालेलुया। तो रोटी खाने से तेरी प्रार्थना खत्म नहीं हो गई, तो रोटी बनने से तेरी प्रार्थना खत्म नहीं हो गई, क्योंकि कुछ और भी है, हालेलुया। कई बार मैं फिर से कहता हूं, आई थिंक which day it was, 1st October, हाँ, it was a lot, 1st October, I was just spending some time and एक बहुत ही अलग सा स्टेटमेंट सुना मैं, बहुत सालों के बाद कुछ ऐसा सुना, right? We will go into that some other time, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ आपके एक मेडिटेशन के लिए सोचो या फिर आपके थॉट के लिए, ठीक है? वो one of the senior man of God he is and he was telling, मेरा नहीं है उनका है, he was telling, do not waste your faith, do not waste your faith to get answers to prayer। ध्यान से सुनो, खत्म नहीं हुआ। do not waste your faith to get a miracle, do not waste your faith to get signs and wonders from God। मैं थोड़ा ही सुन सका, कंप्लीट नहीं हो गया वो, बट आई वॉज
शट डाउन, लाइक मैं बोला नहीं, आगे नहीं सुनना है मुझे, मैं चला गया अपनी दुनिया में, राइट। आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग ऑन दैट, और बोला गॉड, फेथ तूने दिया है मुझे, एक विश्वास तूने दिया है मुझे, किस लिए दिया विश्वास? सिर्फ मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलना है इसलिए दिया, या मुझे कोई चमत्कार चाहिए, मेरा विश्वास मैं सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल करता हूं? जो मुझे चाहिए से क्या सिर्फ मैं उसके लिए विश्वास इस्तेमाल करता हूं? Then the Holy Spirit started speaking to me, और उसने याद दिलाया, Do you remember what Jesus said? बोला yes. What did he say? It is impossible to please God without faith. Right? तो मेरा देखने का नजरिया टोटली 180 डिग्री चेंज हो गया. Well, faith we use always to get things from God. विश्वास को हम हमेशा परमेश्वर से पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विश्वास हमें दिया गया है परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए. हालेलुया. सोच के देखो, मैं बाद में इसको कनेक्ट करता हूं मेरे इस स्टडी में, राइट. सोच के देखना, क्यों दिया विश्वास मुझे? कुछ पाने के लिए नहीं है, मेरे विश्वास के द्वारा परमेश्वर संतुष्ट होना चाहिए. हालेलुया. Because without faith it is impossible to please God. इसका मतलब my faith is given to me to please God, not to get things from Him. You know what the Holy Spirit said? You have totally minimized faith in your sight. विश्वास को तुमने पूरा, अगर मैं हिंदी में कहूं तो बोला कचरा कर दिया उसका. अगर विश्वास यूज करते हो तुम कोई चमत्कार पाने के लिए, कोई हीलिंग पाने के लिए, कोई डिलीवरेंस पाने के लिए, कोई प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए, then you have reduced it to nothing. लेकिन अगर विश्वास को परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए इस्तेमाल करोगे, if you start meditating on these things, मैं कहता हूं विश्वास का तुम्हारा अलग सा स्तर बनेगा. आमेन. हालेलुया. तो जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा था अपने चेलों को, वो बोल रहा था हम कई सारी चीजें कट करके ब्रेक कर देते हैं. नहीं, जब यीशु मसीह यहाँ पे सिखा रहा था 3 चीजें. एक, शरीर की बातों के लिए तुम रोटी मांगो. ध्यान से सुनो. You are asking bread for your spirit. You are asking forgiveness for your soul. And you are asking protection for your spirit when you pray, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hallelujah. इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं the Lord's Prayer is the complete prayer. हमने कभी उसको समझने की कोशिश नहीं की, बस रिपीट करना चाहा. लेकिन परमेश्वर इस सारे क्या बोलते हैं, पूरा लॉर्ड्स प्रेयर में जब यीशु मसीह सिखा रहा था, मैं फिर से दोहराता हूं, he never said repeat this prayer. He said pray in this manner. इस प्रकार से प्रार्थना करो, ये प्रार्थना करो, कभी नहीं बोला उसने. इस प्रकार से प्रार्थना करो, क्योंकि इस प्रकार से प्रार्थना करोगे तो पहला तुम अपना रिश्ता मजबूत करोगे. पहला वर्ड जब बोलोगे आवर फादर इन हेवन, तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो जाता है. हालेलुया. आगे बढ़ोगे, बोलोगे तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूर्ण हो. तुम परमेश्वर को ऊपर उठा रहे हो. हैलोड बी योर नेम. तेरे जैसा कोई नहीं है, तू सबसे महान, सबसे ऊपर तू रहेगा. तेरा राज्य आने दे, तेरी इच्छा मुझ में पूर्ण हो जाए, दुनिया में पूर्ण हो जाए, जैसे स्वर्ग में होती है दुनिया में हो जाए. जब उसने पहले जो स्वर्ग में पिता है उसकी महिमा करने के बाद, उसके
हृदय को जो चाहिए वो प्रार्थना करने के बाद हमसे बोलता है तू अपने लिए रोटी मांग। अभी तेरे देह के लिए क्या कर, तू रोटी मांग। तू खाने के लिए और खाना बनने के लिए तू मांग। हालेलुया। राइट, वहां पे रुक नहीं गया तो नेक्स्ट सेंटेंस में एंड को ऐड करता है। इसका मतलब कुछ और भी है। हालेलुया। जैसे रोटी मेरे लिए देह के लिए था, वैसे अभी माफी मेरे प्राण के लिए रहेगा। It will be for my soul. The body is taken care of now. जो रोटी चाहिए तुम्हारे शरीर को, जो आशीष तुम्हारे शारीरिक रेल्म में जो चाहिए तुमको, उसके बाद वो बोलता है now your soul has to be taken care of. And बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, राइट। एंड बहुत जरूरी है। कोई आके तुमको खाना देगा, सिर्फ रोटी देगा, क्या पूछोगे उसको? रोटी और कोई बोला खाना खाया, क्या खाया? रोटी खाया। रोटी और उसको जब भी पूछता हूँ चपाती बोलता, बोला साथ में क्या खाया हो? God says no, मैं तुम्हें आधा सिर्फ रोटी नहीं दूंगा, उसके साथ में कुछ दूंगा। Hallelujah. There is always an and for things. हर एक चीज के लिए एक and है। पैंट है, there is an and for everything. जाके सोच के देखो। मैं जितना सोच रहा था ना, बहुत बड़ा है, बोल नहीं सकता। When you start adding things, and God says, I want to add things with you. मैं जोड़ना चाहता हूँ सारी चीजें तुमको। इसलिए तो बोला वही मैथ्यू में 6:33 में क्या बोला? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added to you. बोला एंड क्यों बनाया मैंने? ऐड करने के लिए बनाया। हालेलुया। तुमको कट करने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं। एक आशीष मिला, खुश हो जाते, परमेश्वर बोलता है नहीं खुश मत, देयर इज एन एंड दैट इज एडेड। आई एम गिविंग एन एंड, एक और दे रहा हूं मैं तुझे, खत्म नहीं करता हूं, एक और चीज जोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे साथ में, एक और चीज तुम्हें मिला के दूंगा, मैं खत्म नहीं करूंगा। तो यहाँ पे बोला संतुष्ट है, रोटी मिला आज, बस मेरा पेट भर गया। नहीं, वो बोलता है नहीं, वहां पे नहीं रुकना है मुझे। There is an end that has to be added. तुम्हारा सिर्फ शरीर संतुष्ट हो जाए ये सिर्फ मुझे पसंद नहीं, अभी तुम्हारे प्राण को भी संतुष्ट करूंगा मैं। I will see that your soul is set right. Hallelujah. And बोलता है फिर, right? फिर क्या बोला? First word, and he says, forgive us. क्या प्रार्थना करनी है? कैसी प्रार्थना करनी है? तो बोला रोटी तो मांगा, अभी पेट भर गया, फिर क्या मांगना है? नहीं, हम कई बार जो क्या बोलते हैं नैसर्गिक चीजें जो चाहिए, हम सिर्फ वहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे हमको सिखा रहा है नहीं, जरूरी है, इसीलिए तो फर्स्ट दिया उसको। He understands the needs of your body are important. इसीलिए तो पहला उसको मैं हमें पूछ रहा था, why did not you put like spirit, soul and body? नहीं, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट किया मैंने। प्रार्थना जब कर रहा था तो बॉडी, सोल एंड स्पिरिट की बातें मैं किया, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी नहीं किया। क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। मैं कितना भी अच्छा रेवलेशन बोलूं, अगर आप भूखे बैठे हो आप सुन नहीं पाओगे, है ना? क्यों? कंसंट्रेशन कहाँ होता है? पेट पे होता है मेरा। कब खत्म करते, कब खत्म, 10 बार देते।
सो इसका मतलब द रिसीविंग एंड बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। हालेलुया। तो परमेश्वर को भी पता है पहला इनका पेट भरना है, तब ये मेरी बात सुने है ना। इसलिए बोला पहला रोटी मांग लो, रोटी मांग लो, राइट। तुम्हारा शरीर जब संतुष्ट रहेगा, रेस्टफुल रहेगा, तभी मेरी बातें सुनेंगे आप। आमेन, हालेलुया। तो he started with an and he continues and says, forgive us, forgive us. ठीक है, write down if you want. when Jesus is telling, जब यीशु मसीह कह रहा है ऐसे प्रार्थना करो, तो शरीर की जरूरतों के बाद वो आता है प्राण की जरूरत है। और उसकी पहली जरूरत ये है कि इट शुड बी फॉरगिवन। जैसे रोटी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, जैसे रोटी तुम्हारे शरीर के लिए सबसे जरूरी है, तुम्हारा प्राण तंदुरुस्त रहने के लिए यू शुड बी फॉरगिवन। हमें माफी चाहिए। How many of you believe कि मैंने सुना है कुछ प्रीचर्स को कहते हुए, एक बार मांग लिया ना, यीशु मसीह ने सब पाप माफ किए, अब माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सुना है ऐसे लोगों, या फिर कोई प्रीचर को? मैंने सुना है, कहते हैं एक बार माफी मांग लिया, जिस दिन तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने तुम्हारे सारे पाप माफ किए। कौन से? पिछले वाले, अभी वाले, आने वाले भी। मैं बोले पिछले वाले अब तक आई एग्री, आने वाले कैसे? आगे वाले पाप के लिए एडवांस में माफी दे रहा है। इसका मतलब मैं तो बिंदास। हाँ, some people, the grace teachers, they speak these things. बोलता है तुम्हारा पिछला, अभी का, आगे का सब माफ किया। पिछला जो किया, ध्यान से सुनो, पिछला जो किया you did it in ignorance, right? अभी प्रेजेंट में अगर कुछ कर रहे हो, you know why you're doing? आदत से मजबूर। You know why you're doing? क्योंकि तुम आदत से मजबूर हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से बलवान नहीं बनाया तुमने, इसीलिए तुम अब गलतियां कर रहे हो, अब पाप कर रहे हो। लेकिन एक गारंटी बोलता हूं, अगर आने वाले दिनों में जो करने जा रहे हो, तुम होना बोल के करते हो। You are doing it, you will do it deliberately, knowing that God has already forgiven. And God says that is not allowed. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Right? So never क्या बोलते हैं उसको, कभी एक्सेप्ट मत करना। नहीं, इफ अगर आज मुझे पता चला है मैंने कुछ गलत किया है, बोला उस दिन माफ किया ना, तो आज मुझे माफी मांगने की जरूरत है या नहीं? Naturally, I have to. किसी ने बोला कि जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धो रहा था, तो उससे पहले वो कहता है उनसे, मेरे वचन के द्वारा तुम धुले हुए हो, राइट? यू आर वॉश्ड बिकॉज ऑफ द वर्ड्स दैट आई हैव स्पोकन टू यू। लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या कर रहा है वहां पे? उनके पैर धो रहा है। जब पीटर का चांस आता है, तो पीटर बोलता है नहीं नहीं,
क्योंकि यीशु मसीह कहता है अगर तूने मुझे धोने नहीं दिया तो तू मेरा भागीदार नहीं बनेगा। तो ये जोशीला बोला पैर क्यों धोता है, पूरा धो दे मुझे। बोला पीटर तू समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। हम कभी कभी इमोशनल हो जाते, एक्साइटेड हो जाते। नहीं पीटर समझने की कोशिश कर मैं क्या बोल रहा हूं। जो धुले हुए हैं, जिसने स्नान किया, उनको फिर से स्नान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बाहर कहीं पे घूम के आए, उनका सिर्फ पैर गंदा हो गया, उनका सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। अब जब मैं माफी मांग रहा हूं, मैं रो रो के पुराने हिस्टोरिकल सिंस को याद करके मैं माफी नहीं मांग रहा हूं। जनरेशन सिंस को याद करके मैं माफी नहीं मांग रहा हूं। वो तो माफ हो गए जिस दिन मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। अब किसके लिए मांग रहा हूं? अब के मैंने अभी कहीं मिस हो गया, मेरा पैर कीचड़ में फिसल गया। परमेश्वर धोके माफ कर दे इसको। हालेलुया, आमेन। आर यू गेटिंग क्लियर विथ मी? राइट। इसीलिए 1 जॉन 1:9 दिया गया है बिलीवर्स के लिए, ये अनबिलीवर्स के लिए नहीं। 1 जॉन 1:9 कोई किसी को मिला तो पढ़ना। 1:9 और 1:7 व्हाट इज दिस? 1 जॉन फर्स्ट चैप्टर, या व्हिच इज दैट? 1:9, ओके। हाँ, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to clean us from all unrighteousness. ये उद्धार का प्रार्थना नहीं है ये। This is not a prayer for salvation. This is a prayer, this is a forgiveness I am asking when I know I just committed something that is not right in the sight of God. Hallelujah. Amen. Clear हो रहा है? Right? तो इसको हमेशा याद है, क्योंकि हमेशा हमको लगता है क्यों मांगना मैं माफी? मांग लिया ना एक बार, खत्म हो गया। No. The devil is deceiving people. शैतान क्या बोलता है? फंसाना है। क्यों? मांगने की जरूरत नहीं है तुझे। You are already under the blood of Jesus. No need to ask forgiveness. No, that is totally unbiblical doctrine. Amen. Hallelujah. तो जब यीशु मसीह यहाँ पे सिखा रहा है कि हमें माफ कर, forgive us, right? So the first thing I want to introduce to you, या फिर एक प्रश्न ऐसे कहूं मैं, why do we need forgiveness? मुझे माफी क्यों चाहिए? नहीं मिलेगा तो चलेगा क्या? नहीं पूछा तो चलेगा क्या? माफी क्यों चाहिए? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं पाप क्यों करते हो, ये उसके बाद की बात है। Okay, 4 things I will tell you very quickly. Okay, the first thing, पहली बात, मुझे माफी इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे परमेश्वर के सामने, what do you say, to stand boldly before him, उसके सामने मुझे धैर्य के साथ खड़ा होना है। यीशु मसीह बोल रहा है, the second thing, after you ask for your body, दूसरी बात तुम्हें पूछना है कि परमेश्वर हमें माफ कर। क्यों? क्योंकि पहली बात, क्यों मुझे माफी चाहिए? ताकि जो माफ किया हुआ व्यक्ति है वही परमेश्वर के सामने धैर्य से खड़ा हो सकता है। वरना तुम्हारे प्रार्थनाओं में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तुमको। कितने ने अनुभव किया? When you sinned and you want to pray,
जब तुमने पाप किया और प्रार्थना करना चाहते हो, अपने पाप को हटा के बाकी चीजों के लिए प्रार्थना कर, नहीं होता है। यू कैन नॉट। इसलिए यीशु मसीह फॉरगिवनेस के बारे में बहुत कुछ सिखाया, राइट। वी विल गो इन डिटेल बाद में आगे में, राइट। सो पहली बात क्या मुझे समझना है कि मुझे क्यों माफी चाहिए। Why do I need forgiveness? I need forgiveness for a right standing before God. परमेश्वर के सामने धैर्य से, आई एम नॉट गेटिंग इट, राइट स्टैंडिंग क्या बोल सकते हैं, एक बिना दोष के खड़े रहना परमेश्वर के सामने, धैर्य से खड़े रहना। जब ये बात आती है हमें, I tell you, your prayers will start having power. जब खड़े होते हो बिना डाउट के, लॉर्ड आई एम प्रेइंग दिस, और शैतान आपके मन के पीछे कभी ये प्रश्न न डाले तुझे कैसे उत्तर मिलेगा, अभी तूने कुछ करके आया, तेरी प्रार्थना कौन सुनेगा। यीशु मसीह कह रहा है, to remove that you should ask forgiveness, ताकि तुम बिंदास मेरे पास आ जाओ। Come boldly before the throne of grace बोलता है पॉल, है ना। Come boldly before the throne of grace. Why? Because I am forgiven. Now I have boldness. अब मुझे धैर्य है कि मैं जो कुछ भी पूछूं परमेश्वर उसका उत्तर देगा। ओके, ठीक है, लिख लो, मैं कुछ बोलने वाला था। लेट मी टेल यू लिटिल ऑफ दैट। ओके, पहली बात, गिल्ट इज द नीड टू रिसीव फॉरगिवनेस। क्या बोलते हैं गिल्ट को? गिल्ट नहीं, आपराधिक मनोभावना, राइट। और इज इट हाँ, दोषी मनोभावना, राइट। दोषी मनोभावना, आई मीन इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट सम थिंग्स। तुम अपने आप को दोषी मान रहे हो तुम्हारे मन में। दूसरा बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको अपने मन में आपको लग रहा है मैं दोषी हूं, राइट। दैट इज गिल्ट। अगर आप में गिल्ट है, राइट, देन यू रिसीव फॉरगिवनेस। यू हैव टू रिसीव फॉरगिवनेस। देयर इज अ नीड फॉर यू टू बी फॉरगिवन। किसी भी तरह का गिल्ट रहने दो, किसी तरह का दोष भावना रहने दो, राइट। आप अच्छा भी नहीं किए तो भी रहेगा, बुरा किए तो भी रहेगा। ये बात हमेशा ये मत सोचना जो बुरा करते हैं उनमें ही गिल्ट होता है। नहीं, कई लोगों में अच्छी बातों को न करने के लिए गिल्ट होता है। बुरा करने के लिए नहीं, अच्छी बातें न करने के लिए बुरा गिल्ट होता है। सोचो, अगर कोई है जो मुझे मदद मांगा और मैंने मदद नहीं किया, शायद उस समय मैं ज्यादा सोचा नहीं या फिर सोचने के स्थिति में नहीं था, लेकिन बाद में जब मैं स्थिर हो जाता हूँ, काम हो जाता हूँ, याद आता है अरे उसने कुछ पूछा था मुझे, मैंने उसको हेल्प नहीं किया। यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, राइट। तो हमेशा हमको लगता है गिल्ट का मतलब सिर्फ बुरा जो किए, नहीं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गिल्ट्स दैट कैप्चर पीपल, राइट। कुछ बातें हैं जिनको लोग अपने अंदर इतना दबा के रखते हैं ना, that will lead them to commit suicide. अपने गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, राइट। जैसे मैं स्टार्टिंग बोला, अगर गिल्ट को, छोटा सा गिल्ट को अगर कैरी करोगे, एक दिन बर्डन बन जाएगा। हालेलुया। कुछ भी रहने दो, आपको लगता है जो करना चाहिए था मैंने नहीं किया। मैं फिर से बोलता हूं, सिन क्या डेफिनेशन है बिलीवर्स के लिए?
जो अच्छा करना था अगर मैंने नहीं किया तो वो मेरे लिए पाप बन जाता है, सभी के लिए नहीं, मेरे लिए पाप बन जाता है। और उस पाप को अगर मैं कैरी करता रहूं, उस पाप को मैं हर दिन लेके जाता रहूं, एक दिन कुछ नहीं होगा, 2 दिन कुछ नहीं होगा, बाद में आप सोचते थोड़े दिन के बाद भूल जाऊंगा। नहीं, आपने सोचा भूल जाओगे, लेकिन वो आपके ऊपर बोझ बन के रहा, और एक दिन इतना बोझ आ जाता है कि आप जब तब करना चाहते हो, यू विल नॉट हैव इट। मैं हमेशा इसको एग्जाम्पल के तौर से दोस्ती में बात करता हूं। इन अ फ्रेंडशिप, व्हेन देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी होती है ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको क्लियर करो, वरना इतना डिस्टेंस बढ़ेगा तुम में। रिकंसाइल करने के टाइम पे शायद वो दोस्त शायद तुमको फिर ना मिले। आमेन, हालेलुया। सो नेवर अलाउ गिल्ट टू बिकम अ बर्डन। अगर है हम में गिल्ट, देन फॉर श्योर यू नीड फॉरगिवनेस। आमेन, हालेलुया। दोष भावना मेरे अंदर है किसी भी चीज का, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सिर्फ गलत बातों के लिए नहीं, अच्छी बातों के लिए भी। अगर मेरे मन में कोई दोष भावना है तो उसको कंप्लीट करो, या फिर आपने किसी को वादा किया वो पूरा नहीं किया, आप में दोष भावना है, इमीडिएटली कंप्लीट दैट, इमीडिएटली कंप्लीट दैट। कुछ प्रॉमिस किया किसी को, इमीडिएटली कंप्लीट करो। मैं सिर्फ एक दूसरे की बात भी करता हूं, परमेश्वर की ओर भी बात करता हूं। इफ यू हैव प्रॉमिस्ड समथिंग टू गॉड एंड यू हैव नॉट फुलफिल्ड इट, इमीडिएटली फुलफिल इट बिफोर दैट गिल्ट विल स्टार्ट बिकमिंग अ बर्डन टू यू। नहीं, मुझे क्या माफी की जरूरत है? नो, योर गिल्ट नीड्स फॉरगिवनेस। तुम्हारी दोष भावना को माफी की जरूरत है। हालेलुया। गिल्ट is the need to receive forgiveness. दूसरी बात, bitterness is the need to give forgiveness. Guilt is the need to receive forgiveness. Bitterness is the need to extend or give forgiveness. Bitterness क्या बोलते हैं? कड़ूपन। हाँ, कड़ूपन जो है मेरे अंदर, बिटरनेस है। कैसी कड़वाहट हम पालते हैं। मैं वर्ड स्पेशली यूज कर रहा हूं, पालते हैं हम उसको। जैसे हम अपने पेट को पालते हैं ना, वी एंजॉय बिटरनेस। When bitterness is there, you don't have to receive forgiveness. Hallelujah. जब मेरे अंदर किसी भी चीज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर मेरे अंदर कड़वाहट है, तो तुम्हें माफी की जरूरत नहीं है, माफी देने की जरूरत है। जब गिल्ट रहेगा, माफी लेने से तुम छुटकारा पाओगे। अगर कड़वाहट है तो माफी देने से तुम छुटकारा पाओगे। क्यों मैं सबको माफ करता हूं, माफ करता हूं, मैंने इतना माफी मांगा परमेश्वर से, फिर भी नहीं, परमेश्वर बोला अभी तुझे माफी लेने की जरूरत नहीं, माफी देने की जरूरत है। इसलिए तू फ्रीडम एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इसलिए आजादी नहीं लग रही है तेरे जीवन में। Why? Because you are trying to receive forgiveness. No, your freedom is in giving forgiveness. Hallelujah. ये दो चीजें याद रखना हमेशा, राइट? तो जब सोल की बात होती है, जब प्राण की बात होती है, यीशु मसीह कहता है देह के लिए जैसे रोटी है, तो तुम्हारे प्राण के लिए माफी की जरूरत है। क्योंकि जब तक तुम्हारे प्राण दृढ़ ना हो जाए,
I am guiltless. I don't have any bitterness. I cannot come before God unless I am set free from these things. इन बातों से जब तक मैं अपने आप को छुड़ा नहीं लेता, तब तक मैं परमेश्वर के सामने, तुम कितना भी रो, कितना भी फास्टिंग करो, कितना भी प्रार्थना करो, नहीं चलेगा. गॉड सेज नो, नहीं चलेगा. इसलिए यीशु मसीह इतना स्ट्रिक्ट हो गया. वो जब बता रहा था ना फॉरगिवनेस के बारे में, बोला तुम बड़ा सा गिफ्ट लेके आए, चर्च में आए, बहुत खुशी हुई, परमेश्वर ने आशीष दिया. पूरे आशीष को याद करके सोचो मेरा बर्थडे है, मैं उस दिन परमेश्वर के लिए गिफ्ट लेके आया. बोला खुश हूं परमेश्वर, आज तुझे देना चाहता हूं. लेकिन यीशु मसीह बोलता है जब लाए हो गिफ्ट, अर्पण करना चाहते हो ऐसा, और तुम्हें याद आता है. और मैं कहूं, कोई याद दिलाने की जरूरत नहीं है. शैतान है याद दिलाने के लिए तुम्हें. आप भूल सकते हो, लेकिन उसके पास पूरा रिकॉर्ड है. तुम्हारे डेटा से ज्यादा उसके पास है. हर बार याद दिलाएगा तुम्हें. और यीशु मसीह कहता है तुम जैसे ही देने वाले थे, याद आया तो बोला नहीं चाहिए मुझे, रख उसको बाजू में. I said, God, a service to you is being stopped. I don't care. Hallelujah. I frankly heard this word. Holy Spirit, I don't care. तू क्या देता है, क्या नहीं, मैं अपने आप को दे रहा हूं. नहीं, I think it's in Romans जहां बोलता है, यानी I forgot, I am out of this context, right? तो जहां पे बोलता है कि अगर प्यार नहीं है और तुमने अपने शरीर को जलाने के लिए दिया तो वेस्ट है. राइट? क्या बोलता है? तुमने अपने शरीर को जलाने, तुम्हारे अंदर इतना जोश है परमेश्वर के लिए, क्या करना है, क्या कर, मैं अपने शरीर को देता हूं. लेकिन जलते हुए भी अगर कोई याद आया कि मुझे माफ करना था और मैं माफ नहीं करूंगा, जलूंगा जरूर लेकिन माफ नहीं करूंगा, जलूंगा जरूर लेकिन मेरे दोष भावना को हटाऊंगा नहीं मैं. क्यों? बिकॉज आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग जो मैंने किया वही सही है. द मोस्ट हॉरिबल प्लेस टू बी. जो अपने दोष को पहचान न सके, क्या बोल सकते हैं, द मोस्ट पिटिएबल पर्सन दैट लिव्स ऑन दिस अर्थ. तुझे माफी किस लिए मांगना तू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. What will you ask for when you are telling, I am not guilty? मुझ में कोई दोष नहीं है. पहला यूहन्ना कहता है, if somebody says, I am sinless, I am blaming God. I'm blaming God. कौन बोल सकता है आज दिन भर मैंने पाप नहीं किया? चलो दिन भर भी नहीं, अभी कितना 12 कितने घंटे हुए उठ के? शायद 6 घंटे हो गए जो 6 बजे उठे. बोलो ये 6 घंटे में तुमने कोई पाप नहीं किया? बोल सकते हो? तो कैसे आ सकते हो ऐसा परमेश्वर? Come with an attitude.
Lord, I need you. तू नहीं है तो नहीं है. The next episode I will tell you why God forgives. Right? Okay. तो मुझे माफी चाहिए. पहला ये परमेश्वर बोलता है तू पहले मेरे पास ऐसे आ कि तुझे माफी चाहिए तो ही माफ करूंगा. तू ऐसे आएगा क्या जरूरत है मुझे, तुझे करना है तो कर तू माफ. नहीं, जैसे आएगा वैसे ही जाएगा तू. Your guilt will stay with you. इसलिए कुछ लोग कितना भी चर्च अटेंड करो कभी खुश नहीं होते. जो मुंह लेके आए थे वही मुंह लेके जाते. मैं बोला 9 बजे आए थे, अभी 12 क्यों बज रहे? थोड़ा 6 बजे वाला चेहरा लेके जाओ ना. Hey, you're coming into the presence of God. बोलता है जब तक तू मांगेगा नहीं दूंगा नहीं तुझे. Remember this. Unless you ask forgiveness, He will not forgive you. मैं फिर से कहता हूं, इसमें भी परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता. कॉलर पकड़ के नहीं बोलता तुझे माफ कर. तेरी इच्छा है. You want to be set free? Ask forgiveness. I am ready to forgive. कितना किया कितना बड़ा किया वो नहीं, तो सिर्फ वापस आना है बस मेरे लिए. हालेलुया. वही तो हुआ ना जब बेटा आया बोलने, अपना बड़ा सा स्पीच रेडी करके आया था. वचन बोलता है सुनना भी नहीं. नहीं बाबा तू मर गया था, तू जिंदा होके वापस आया. बस समझ तू कैसा पाप किया, कितना लेके गया, मेरा हिसाब दे अभी. बोला मुझे नहीं. अरे तेरे लिए तो पार्टी करूंगा, तो सिर्फ वापस आ जा मेरे पास. A person who recognizes the need of forgiveness will be the closest to the heart of God. तो पास्टर क्या दिन भर खाली माफी मांगते? नहीं नहीं. You have not understood the heart of the Father. You have not understood the heart of the Father. और बोलता है जब तुम माफी मांगने के लिए आते हो ना, तो मैं तुम्हारे हृदय को देखता हूं. तुम्हारे हृदय को देखता हूं मैं. क्या इच्छा से आ रहे हो? अभी माफ कर दे परमेश्वर, कल मैं फिर यही दोहराने वाला हूं. Tomorrow I am going to repeat the same thing. So today you forgive me. एडवांस में माफी मांग रहे हो. That's why I said future forgiveness is not allowed in the Bible. Yes. Hallelujah. Deliberate sinning is not allowed in the Bible. Sinning in weakness, sinning in bondage is different than deliberately sinning. बंधन में पाप करना, बलहीनता में पाप करना और जानबूझ के पाप करने में बहुत फर्क है. शायद हमको ये फर्क करना नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को पता है. हालेलुया. So guilt is the need to receive forgiveness and bitterness is the need to give forgiveness. हालेलुया. ये दो चीजें जब हमारे सोल से हट जाएंगी तो क्या हो जाता है? फर्स्ट, पहली बात होती है यू कम बोल्डली बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस. हालेलुया. चिल्ला के बोल सकते हो, है पिता मुझे ये चाहिए. हालेलुया. वो व्यक्ति जिसके अंदर कोई दोष भावना नहीं है, जिसके अंदर कोई कड़वाहट नहीं है, वो आके बोल सकता है जो यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से पिता के सामने कुछ भी मांगो वो तुम्हें देगा. कब देगा? जब मेरे अंदर कोई दोष भावना नहीं है, मेरे अंदर कोई कड़वाहट नहीं है. तब जो भी मैं मांगूंगा, वो बोलता है बिना हिचकिचाए तुझे दूंगा. मैं तेरे पूछने से पहले मैं तुझे दूंगा. जो तू चाहता है उसकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा. क्योंकि क्या देख रहा हूं मैं? तेरे उस प्राण को देख रहा हूं. I am seeing your soul so clean.
ready to accept what I want to give. Hallelujah. Amen. So first thing, क्यों मुझे माफी चाहिए? क्योंकि मुझे उसके सामने बिना दोष के खड़े होना है. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ठीक है, I'll add one more thing in this. जो माफी नहीं मांगते, very simple, they are being proud against God. They are acting pridefully before God. परमेश्वर के सामने गर्व से बर्ताव कर रहे हो, घमंडी, हाँ, घमंड से बात. मुझे क्यों चाहिए माफ? मैंने क्या गलत किया? कई बार होता है जब गॉस्पेल प्रीच करने जाते हैं ना, बोलना है तुमको माफी की जरूरत है. पहली बात बहुत से लोग पूछते हैं, मुझे क्यों माफी चाहिए? मैंने क्या गलत किया? क्योंकि तुमको लगता है कि तुमने सब कुछ सही किया अपनी नजर से. नहीं, मुझे अपनी नजर से नहीं, परमेश्वर की नजर से देखना है. परमेश्वर की नजर से देखना है. मैं फिर से दोहराता हूं, जैसे मैंने कल बोला था, इफ आई से आई एम अ सन ऑफ गॉड, इट डजंट मेक डिफरेंस अनलेस गॉड डिक्लेयर्स यू आर द सन ऑफ गॉड. उसी तरह अगर मैं कहूं मैं पवित्र हूं तो फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि परमेश्वर मुझे देख के कहे तुझ में कोई दोष नहीं है, तुझ में कोई कपट नहीं है, तो वो व्यक्ति है जो क्लीन है मेरे सामने. कौन बोलना चाहिए? परमेश्वर बोलना चाहिए. तभी तू उसके सामने स्थिर खड़ा रहेगा, धैर्य से खड़ा रहेगा, और जो तो पूछेगा ना उसमें तेरा कॉन्फिडेंस रहेगा. हालेलुया. वरना तू भी इफ गॉड बट गॉड बोल के जाएगा, है ना. इसलिए हम कई बार हमारे प्रेयर्स में इफ इट इज योर विल, क्यों? गारंटी नहीं है तुझे. परमेश्वर बोलता है इफ यू नो दैट यू आर गिल्टलेस, यू डोंट हैव एनी बिटरनेस, यू आर राइट स्टैंडिंग बिफोर मी, यू विल आस्क बोल्डली बिफोर मी. हालेलुया. आमेन. इसलिए छोटी छोटी बातें भी पूछते हैं हम लोग. क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है, बड़ा देगा क्या नहीं. फिर फोकस मुझ पे आ जाता है. एम आई केपेबल ऑफ इट? एम आई केपेबल ऑफ रिसीविंग? नहीं, वो बोलता है पूछ दे दूंगा मैं. जिसने कहा पूछ दूंगा मैं, उसमें माफी भी आती है. सिर्फ रोटी कपड़ा मकान पूछना नहीं है, माफी भी पूछना है. आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू. इट शैल बी गिवन टू यू. एक उदाहरण है. उदाहरण क्या? सच्ची कहानी है या फिर सच्चा इंसिडेंट है. एक बेटी थी जो फॉरेन में बचपन से लेके वहीं पे थी. शी स्टडीड देयर, वर्क देयर. शी हैड अ ग्रैंडफादर. क्या बोल, दादा है. उसका एक दादा था, हमेशा कांटेक्ट में रहते, बात करते, बहुत कुछ. वो दोनों के बीच में बहुत सारे सीक्रेट्स थे, है ना. ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन हैव सीक्रेट्स, राइट. माँ बाप को नहीं बोलते. सो दे हैड सम सीक्रेट्स. सो वो अपना लाइफ उसके साथ, दादाजी के साथ शेयर करते. लेकिन कुछ ऐसी बातें उसने बताई कि दादाजी को लगा कि पेरेंट्स को पता होना जरूरी है. सो ही शेयर्ड इट विद द पेरेंट्स. उसने उसके माँ बाप को बताया. शी गॉट टू वेरी एंग्री. वो जो लड़की थी, गुस्सा आ गया उसको. मैं बोला, वो बोली आई थॉट यू विल बी माई सीक्रेट कीपर. किसी को नहीं बताओगे, तुमने जाके मेरे पेरेंट्स को बताया. आज से तुझसे बात नहीं करूंगी. टोटल कट रिलेशनशिप. लेकिन कुछ ही महीनों के बाद दादाजी गुजर गए. दादाजी गुजर गए तो आना पड़ा उसको. जबरदस्ती बुला लिए पेरेंट्स ने उसको. आने के बाद उसको एक लेटर मिला दादाजी के पास. बोला ये लेटर तेरे लिए है. तो उसने उसमें रीजन लिखा था क्यों
मुझे तेरे पेरेंट्स को बताना पड़ा। वेरी डिटेल्ड लेटर। और जैसे ही उसने वो लेटर पढ़ा, शी वॉज कन्विंस्ड दैट व्हाट ही डिड वॉज राइट। उसको समझ में आया जो दादाजी ने किया उसने सही किया। बट देन शी वांटेड टू आस्क फॉरगिवनेस। अभी दादाजी को माफी पूछना है। कैसे पूछेंगे? वो बोलती है आई स्टार्टेड कीपिंग, उसका एक रॉकिंग चेयर था, तो बोली उसके रूम में उसका रॉकिंग चेयर के हर सुबह जाके उसके रॉकिंग चेयर के सामने जाके माफी मांगती हो, हर सुबह जाके माफी मांगती। तो ऑन द वे शी फाउंड जीसस। किसी तरह उसका उद्धार हुआ और फिर भी ये प्रैक्टिस उसका कंटिन्यू था। तो एक दिन जब वो रूम में गई और माफी मांगने लगी, an angel appeared to her and the angel asked, what are you doing? वो बोली, I am asking forgiveness to my grandfather. And the angel clearly said, it's not possible now. It's not possible now. इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। Then Jesus appeared and he said, it's not possible now, but when you come up, you will know your grandfather has already forgiven you. Amen? Right? तो एक बात हमको ये सीखना है, अगर इस गिल्ट से निकलना है, इस कड़वाहट से निकलना है, वो चीजें हमें यहीं पे करनी होती है। Amen? Before the time runs out. परमेश्वर की ओर से माफी हमें मिलती है, हम एक दूसरे को माफी देते हैं। Amen? परमेश्वर से माफी हमको मिलती है और हम उस माफी को एक दूसरे को देते हैं। Shall I connect it with bread? Yes. You received the bread of forgiveness from God, and now you're giving the bread of forgiveness to somebody else. जो आपके माफी के भूखे हैं, अगर उनको आपने अपना रोटी नहीं दिया, you are starving them to death. And God will never forgive you for this. तेरे गलती के लिए माफ किया, लेकिन क्योंकि तूने माफी की रोटी नहीं दी, इसलिए कभी तुझे माफ नहीं करेगा। Amen? हालेलुया। अगर मुझे खड़ा रहना है उसके सामने धैर्य से, दोष रहित, तो बोलता है अपने प्राण से, not in the spirit. Spirit will never be guilty. Spirit will not have bitterness. Your guilt and bitterness is in the soul, not in the spirit. Right? तो अपने प्राण को शुद्ध रखना है, अपने प्राण को परमेश्वर के सामने स्थिर बना के रखना है, दोष रहित बना के रखना है। तो परमेश्वर से माफी लो, अपने दोष को हटाओ और कड़वाहट को निकाल के किसको माफ करना है उसको माफी दे दो। Amen? Hallelujah. ये पहली बात। Quickly I'll go to the second one. I can take time today also? Yes. Yes. दूसरी बात, माफी मुझे क्यों चाहिए? Forgiving someone else is a favor you do upon yourself. Hallelujah. फिर से रिपीट करो। Forgiving somebody else is a favor you're doing upon yourself. मुझे हिंदी में थोड़ा इसको बता सकते? हाँ, वेरी गुड। जब तुम किसी और को माफ करते हो
तो खुद पे उपकार करते हो। कितने को पसंद अपने आप को उपकार करना, अपने आप पे एहसान करना, दूसरों पे नहीं करते, खुद पे तो करो। When you forgive somebody, you are favoring yourself. पता है क्यों? Your giving of forgiveness will set you free. दूसरी बात, मुझे माफी क्यों चाहिए? मुझे आजादी में जीना है। हालेलुया। हाँ, ब्रदर बोल रहे जब माफ करते ना बहुत हल्का लगता है। Yes, true it is. बर्डनसम जिंदगी क्यों जी रहे हैं लोग? Because they have not forgiven people. शायद आगे डिटेल में बोलूंगा, लेकिन कहते हैं मेडिकली, if you don't forgive and gather bitterness, it becomes the root for all your diseases. मैं बोला सिर्फ प्राण को इफेक्ट करेगा, नहीं, तुम्हारे शरीर को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि इट्स एन एंड। हालेलुया, इट्स एन एंड। तुमको क्या लगा माफी नहीं करूंगा सिर्फ मेरा सोल में फर्क? नहीं, तुम्हारे आते आते बर्डन इतना बढ़ जाएगा, कड़वाहट इतनी बढ़ जाएगी कि वो शरीर में भी इफेक्ट होने लगेगा। आगे बताऊंगा, अगर इसको फिर भी केयर नहीं किया तुमने, एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम बोलोगे मैं डाउट है मेरा सल्वेशन हुआ क्या नहीं, वहां तक चले जाओगे तुम, वहां तक चले जाएंगे। डोंट टेक दिस थिंग्स लाइटली। छोटी बातें हैं, मैं फिर से कहता हूं, छोटी बातें हैं। क्या है, आधा लीटर का बॉटल है, कितना देर पकड़ सकता हूं? 1 घंटा, 1 घंटा पकड़ सकते हो? 1 दिन पकड़ कर दिखाओ मुझे। होल्ड इट फॉर होल 1 डे। मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि रील्स में देखा होगा आपने सब। यू कैन नॉट होल्ड। एक्चुअली करने वाला था, स्टार्टिंग किसी को खड़ा करके देख के मैसेज खत्म होने तक पकड़ के रख जाना था। That's a reality. It's a reality. ये यीशु मसीह हमको पहले से सिखाया, दुनिया वाले अब भी सिखा रहे हैं। है ना? यीशु मसीह ने पहले, बहुत पहले सिखा, दुनिया वाले अब भी बोल रहे तंदुरुस्त रहना है, सबको माफ करो। यीशु मसीह पहले ही बोला। अरे प्रार्थना करने का ही तरीका है, मैंने वो सिखाया था तुझे, तूने वो छोड़ के खाली गाड़ी बंगला मांगते बैठा। You never followed the manner in which I had taught you to pray. जिस तरह से तुझे प्रार्थना करनी थी वो तुमने सीखा नहीं। I am setting myself free when I forgive. I need to be forgiven. That sets me free. Hallelujah. तो ये चीजें जो यीशु मसीह हमको सिखा रहा है, वो जब बोलता है कि पीटर आता है, जब यीशु मसीह सिखा रहा है तो पीटर आके बोलता है, ये सुबह से मेरे को 2 बार गाली दिया, देख इसको कितनी बार माफ करूं मैं, कितनी बार माफ करूं? फेमस है 70 times 7, 490 times per day. लाइफ टाइम नहीं, पर डे। Is there somebody who can hurt you 490 times in a day? I don't think so. क्योंकि पता है 2-3 बार बोलोगे तुम उसको छोड़ के जाओगे, साथ में भी नहीं रहोगे, तो तुम्हारा काउंट कंप्लीट नहीं हो गया।
So one day I was asking, Lord, क्यों ऐसे बोला? क्यों ऐसे बोला? इतनी बार माफ करना है, नंबर क्यों बोला? 70 times 7 क्या खास है? न्यूमरोलॉजी नहीं, न्यूमरोलॉजी में नहीं जाना है। चलो एक होमवर्क देता हूं। फाइंड आउट इन द बाइबल व्हाट 70 exactly means. Seven is complete, right? 7 is complete. 70 times 7, right? Try to find out. I will not tell you. बहुत सारी चीजें हैं। बाइबल एक बार फिर से पूरा एक बार छान लो, स्कैन कर लो, ठीक है? ओके, shall I go to the third one? तीसरी बात, मुझे माफी क्यों चाहिए? क्योंकि जब मुझे माफी मिलती है मैं बदल जाता हूं। कैसे बदलता हूं पता है? I start reflecting God. Because I am forgiven, क्योंकि मुझे माफी मिली है, मैं परमेश्वर के कैरेक्टर को दर्शाना चालू करूंगा। जिसको माफी नहीं मिली है वो कभी परमेश्वर के कैरेक्टर को दर्शा नहीं सकता। मेरी बात ध्यान से सुनो, राइट? जो व्यक्ति को परमेश्वर से माफी नहीं मिली वो परमेश्वर के कैरेक्टर को कभी नहीं दर्शा सकता। अच्छा इंसान बन सकता है लेकिन परमेश्वर का कैरेक्टर नहीं दर्शा सकता। He can become a good person but he can never reflect God. Why do I need forgiveness? So that I can reflect God. Hallelujah. Amen. Right? तो जब मुझे माफी चाहिए, क्यों चाहिए? Because I want to reflect God. मैं परमेश्वर को दर्शाना चाहता हूं। क्योंकि अभी मुझे क्या पता चलता है पता? कि जब परमेश्वर ने मुझे माफ किया तो इमीडिएटली मेरे मन में एक बात है कि जो उसने मुझे किया मैं किसी और को करूं। हालेलुया, आमेन। तो मैं बोला इतनी बार माफ करने के लिए क्यों बोला? ताकि तुझे मेरे जैसे मैं बनाऊं। आमेन, हालेलुया। एक बार दो बार कोई भी माफ कर देता है लेकिन इतनी बार माफ करना सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। 490 हैज अ डिफरेंट फिगर एंड मीनिंग फॉर दैट, राइट? तो परमेश्वर बोलता है इट रिफ्लेक्ट्स मी इन यू। मुझे तेरे अंदर दर्शाने लगेगा जब तू इन चीजों को क्या बोलते हैं, स्वीकार करेगा। मेरे से अगर माफी लेगा और बांटेगा तो वो बोलता है तू मुझे दर्शाएगा। आई स्टार्ट बिकमिंग और एक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग द नेचर ऑफ गॉड व्हेन आई रिसीव फॉरगिवनेस। हालेलुया, आमेन। इसलिए क्या कहता है, आई थिंक इट इज साम्स 32 और 37 समवेयर, वहां पे क्या कहता है? द ब्लेसेडनेस ऑफ अ मैन, right? The blessedness of a man is, blessed is the man whom the Lord will not impute sin for that. Amen, hallelujah। जिसको परमेश्वर उसके ऊपर दोष नहीं डालता ना वो आशीषित व्यक्ति। Hallelujah। Blessed is the man upon whom the Lord will not impute sin। इसका मतलब परमेश्वर भी दोष नहीं डाल रहा उस पे। माफ किया उसने, उसको माफ करके क्या बोलता है? यू विल नाउ स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग मी। तू अभी क्या करेगा? मुझे दर्शाते जाएगा। जो तूने किया, जो तू रिसीव किया, जो माफी तूने स्वीकार किया, अब तू उसको बांटते जाएगा। हर जगह तू जाएगा, तेरे अंदर से माफी की सुगंध निकलेगी। हु इज दैट पर्सन हु कैन फॉरगिव?
only the one who has received forgiveness. Because you cannot give what you have not received. Hallelujah. You cannot give what you have not received. फिर से दोहराता हूं, जो आपने पाया नहीं उसको आप कभी नहीं दे सकते हो। कोई पूछ रहा था, पास्टर माफ करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। मैं उनको एक ही बात कहता हूं, अगर आप में भी कुछ लोगों के लिए प्रश्न है ये कि मुझे माफ करना क्यों इतना कठिन लगता है, बिकॉज यू हैव नॉट टेस्टेड फॉरगिवनेस इन इट्स फुलनेस। तुम खुद माफी स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तुम किसी को माफ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इधर उधर थोड़ा बहुत आपने स्वीकार किया, you have not received the forgiveness in its fullness. Hallelujah. Right? आगे मैं बताऊंगा, जब forgiveness fullness में आता है, जब माफी पूरी तरह से हम उसको स्वीकार करते हैं, एक अलग फ्रीडम या फिर एक अलग परमेश्वर का जो कैरेक्टर है उसको अलग रीति से हम दर्शाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, टू पीपल, Judas and Peter, both committed the same kind of sin. दोनों ने एक ही तरह का पाप किया था। एक ने पकड़वा के दिया, एक ने मुझे नहीं मालूम बोल के नकार दिया। Both were as equally guilty. दोनों को पश्चाताप हुआ। Judas also repented. Yes. Amen. Yes. Amen. Judas also repented. Peter received the forgiveness in fullness. Yes. Amen. पतरस ने माफी को संपूर्ण रीति से स्वीकार किया, लेकिन जूडस ने माफी था उसको, लेकिन उसने कभी उसको स्वीकार नहीं किया, इसीलिए वो खुद को भी माफ नहीं कर सका। Amen. Hallelujah. Those who do not receive the forgiveness in fullness, जो संपूर्णता में परमेश्वर की ओर से माफी नहीं स्वीकार करेंगे, वो कभी कभी खुद को भी माफ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए खुद को ही माफ नहीं किया तो दूसरों को कैसे माफ करोगे? You don't have the capacity to forgive others. कुछ लोग अपने आप को इतना दोषी खड़ा करते, पता है? I remember one parent talking to me. वो आके हमेशा रोता मेरे साथ। बोलता, क्यों अंकल क्यों रोते? तो बोलता, जितना मुझे अपने बच्चों के लिए करना था मैं नहीं कर सका। मैं नहीं कर सका। अपनी सारी जिंदगी भर मैं बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका। मेरे अंदर वो जिंदगी भर रहेगा, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। Can you imagine he tried to commit suicide when he was 72? तब actually they called me to talk to him और ये बातें निकली। Nothing big, कुछ बड़ा पाप नहीं किया, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। The only guilt he had, I wasn't a good father to my children. You don't know, पता नहीं, आप दुनिया में जाओ, लोगों से बात करो, ऐसे ऐसे दोष अपने अंदर दबा के रखे, आप परेशान हो जाते हैं। You know, you can't even imagine. मैं बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? आपने किया जितना आपको हो सकता था। बोला, नहीं, मुझे और करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया। अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता मैं। फिर उनको बिठा के थोड़ा काउंसलिंग करना पड़ा, बिठा के समझाना पड़ा। पहली बात, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं है। जब तक ये नहीं समझोगे तुम अपना बोझ लेके जाओगे, मेरे बच्चे मेरे बच्चे।
अपने बच्चों को दे दो ना परमेश्वर के हाथ में, क्यों उठा के घूमते हो उनको? जितना उठा के रखोगे उतना, जब तक छोटे थे उठा लो। Give them in the hands of God. मैं हमेशा बोलता हूं, जिसने आपको पाला क्या उनको नहीं पालेगा? तुम्हारे बच्चे अभी तो पढ़े लिखे हैं, हालेलुया। अरे हम जैसे अनपढ़ को, गरीब को पाला तूने, अब उनको नहीं पालेगा तो क्यों पालते हो? सेट योरसेल्फ फ्री। अनवांटेड गिल्ट लेके घूमते हैं हम लोग, पता है, अनवांटेड बर्डन्स लेके घूमते हैं। नहीं, मैं हमेशा कहता हूं, द ग्रेटेस्ट हीलिंग अ पर्सन नीड्स इज टू सेट हिमसेल्फ फ्री। सबसे बड़ी चंगाई जिसको चाहिए, अपने आप को क्या बोलते हैं, छुटकारा देने की। इसीलिए तो दुनिया में इतने सारे निकले अभी, हर फेसबुक पे 99 1 आवर वेबिनार, वी विल सेट यू फ्री। परमेश्वर बोलता, आओ मेरे पास, फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव अदर्स। वही तो सिखाया मैंने। प्रार्थना का मूल वो है, यीशु मसीह के पीछे चलने वालों का फाउंडेशन वो है। इफ यू आउटसाइड, इफ यू गो एंड आस्क व्हाट इज क्रिश्चियनिटी, पहली बात बोलते हैं, हाँ वही है ना जो क्रूस पे बोला सबको माफ कर। वो कभी ये नहीं बोलेंगे लाजरस को जिसने जिलाया, उनको ये भी नहीं मालूम खुद जिंदा हो गया, वो भी नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बात जरूर बोलेंगे कि क्रूस पर से उसने कहा था, परमेश्वर पिता इनसे माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। That is our label upon our head. We are called to receive forgiveness and give forgiveness. अगर ये नहीं कर रहे हो तो विश्वासी क्यों कहलाते हो? क्यों अपने आप को मसीह कहते हो? अगर माफ करना हमने सीखा नहीं, माफी स्वीकार करना हमने सीखा नहीं, कभी कभी ऐसे भी होता है, पता है, सामने वाला आपको माफ करना चाहता है, आप धित, अरे वो दे रहा है, बोल रहा है सॉरी बाबा माफ कर, नहीं, वो तो जाएगा आराम से खुशी से, तुम फिर भी वही बर्डन में रहोगे। लर्न टू रिसीव फॉरगिवनेस, लर्न टू रिसीव फॉरगिवनेस, वरना बर्डन इतना बढ़ जाएगा, you will not even be able to forgive yourself and your end will be very horrible. तुम अपने आप को द्वेष करना चालू करोगे, आईने में भी देख नहीं पाओगे तुम। आई एम टॉकिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, शायद छोटा है, बहुत ही साधारण सा सब्जेक्ट लगता है, सुना हुआ सब्जेक्ट लगता है, बट येट इफ वी हैव नॉट वर्कड ऑन इट, उसके ऊपर हमने काम अगर नहीं किया है, तो हमारी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी, बोझ तले। आमेन, हालेलुया। आई नीड फॉरगिवनेस। क्या क्या बोला मैंने? पहली बात, व्हाई डू आई नीड फॉरगिवनेस? टू हैव अ राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड। सेकेंड, टू बी फ्री, राइट? तीसरी बात, टू रिफ्लेक्ट गॉड। आमेन, आई रिफ्लेक्ट गॉड व्हेन आई रिसीव फॉरगिवनेस। चौथी बात, जब मैं माफी लेता हूं और देता हूं तो मेरे जीवन में दो चीजें होती है। एक, खुद में संतुष्ट रहोगे, हालेलुया। यू विल बी satisfied in yourself and your relationships will be restored. हालेलुया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब तुम माफी लोगे और माफी दोगे तो अपने आप में इतना संतुष्ट रहोगे
और तुम्हारे संबंध जो है बहुत हेल्दी रहते हैं. They start becoming very healthy. हालेलुया. जब माफ करते हो और माफी देते हो और माफी लेते हो ना, सामने वाले की खुशी में तुम खुश हो जाते हो, है ना. वरना सामने वाले की उन्नति में तुम घुटने लगते हो, उसकी खुशी में तुम दुखी हो जाते हो. किसी और के ब्लेसिंग में यू स्टार्ट बिकमिंग जेलस. मैं तो कहता हूं, इफ आई कैन गो ऑन, इस एक माफी देना और लेने में हमारी जिंदगी का हर एक भेद छुपा हुआ है. हालेलुया. I can connect it to every aspect in your life. I can connect it to your health. आपके शरीर के साथ इसको जोड़ सकता हूं, आपके फाइनेंसेस को जोड़ सकता हूं, आपके मेंटल हेल्थ को जोड़ सकता हूं. स्ट्रेस क्यों होता है आजकल लोगों को? आजकल ही हम लोग सुन रहे हैं ना, स्ट्रेस, एंग्जाइटी. कभी मैंने अपने दादाजी के मुंह से नहीं सुना था, आई एम वेरी स्ट्रेसफुल नाउअडेज. बोला कहां से आया वो भाई, कहां से आया? एक बेसिक थिंग बोलता हूं, योर स्ट्रेस इंक्रीजेस व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग विथ अदर्स. A spirit of comparison is the root for stress. Don't tell me about work. You are working because you want to prove better than somebody else. Hallelujah. तुम इसीलिए मेहनत, हार्ड वर्क, यू वांट टू डू हार्ड वर्क. क्यों? आई वांट टू बी द बेस्ट वन. कहीं क्या बोलते हैं, दुखती नस पे हाथ रख रहा हूं क्या? चुप हो गए. रिमूव दैट स्पिरिट ऑफ कंपैरिजन फ्रॉम यू. You will be stress free. You will be secure in yourself. अपने आप में संतुष्ट रहोगे. हालेलुया. इसलिए मेरा डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, मेरे जैसा कोई नहीं है. मेरे से अच्छा मिलेगा, मेरे से बेहतर मिलेगा, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं है. हालेलुया. There is no competitor for me. And I mean से आके जाएगा, जा बाबा. मास्टर तुमने 5 सीटर वाला गाड़ी लिया, हम 7 सीटर वाले नहीं. बोले टेम्पो ले, मुझे क्या फर्क. टेम्पो ले, बस ले, ट्रेन ले, एरोप्लेन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि तू जो लेता है ना, वो टेम्पो मेरे अंदर नहीं आता, चर्च को भी नहीं जा सकता. Receiving forgiveness and giving forgiveness will keep you free from every stress. It will keep you healthy and your relationships will be very healthy. जो ये सीखता है अपनी जिंदगी में, माफ करना और माफी देना, माफी देना और माफी लेना जो सीखेगा, उसके जिंदगी में रिश्ते देखो, उसके जिंदगी के रिश्ते ऑब्जर्व करो. He will be very good a relation keeper. Hallelujah. Amen. अगर रिलेशन रखना तुमको नहीं आ रहा है, then something is wrong. Then something is wrong. इसका ये मतलब नहीं है सामने वाला गुस्सा हो रहा है तो हमेशा मैं अपने आप को दोषी नहीं खड़ा कर सकता. अब तेरी सोच, मैं क्या कर सकता.
है ना? किसी ने बोला, एक बात हमेशा सोचो, सामने वाले को बदल सकते हो नहीं, तो टेंशन क्यों लेते हो? रहने दो उनको अपनी जिंदगी, तुम अपनी जियो। वो खड़ा रहेगा परमेश्वर के सामने, तुम खड़े रहोगे परमेश्वर में। डू व्हाट इज राइट। हालेलुया। जो परमेश्वर की नजर में सही है वो करो। एक लास्ट एग्जांपल देता हूं। टू पीपल मैं हमेशा कंपेयर करता हूं, पता नहीं आपको नहीं बोला राइट? मोसेस एंड फेरो, कभी कंपेयर किया ये दोनों को? मोसेस एंड फेरो, व्हाट वाज मोसेस डूइंग? मोसेस क्या कर रहा था? अपने लोगों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। फेरो क्या कर रहा था? वो बोलता ये मेरे क्या बोलते गुलाम है। नाउ टेल मी, हु इज रॉन्ग, हु इज राइट? मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला, फॉर दिस रीजन आई रेज्ड अप फेरो। इट्स अ वर्स इन द बाइबल, है ना? मैं बोला ठीक है, फिर जिसके लिए उसको उठाया था वही कर रहा है वो। परमेश्वर के लोगों को गुलामगिरी में रखने के लिए उसने फेरो को उठाया था। अभी वो गुलामगिरी उनको उनसे करा रहा है, तो उसको दोष क्यों दे रहा है? God never said I blamed Pharaoh. I will never blame Pharaoh, because he did what he was called for. Amen. लेकिन गलती कहां हो गई? क्यों नाश किया? क्योंकि तुझे पता होना चाहिए, अगर तेरा घर में गुलाम भी है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, ये तेरा कैरेक्टर होना चाहिए था। फेरो तेरे नीचे है वो, लेकिन उसको कैसे तू ट्रीट करेगा? जैसे मैं तुझे ट्रीट किया, क्या तू उसे वो ट्रीट करेगा? है तेरे नीचे। हालेलुया, आमेन, आमेन। दैट्स अ डिफरेंट क्या बोलते हैं, डायरेक्शन अलग है उसका, लेकिन एग्जाम्पल मैं बता रहा था, राइट? ताकि जब हम ये इसको समझ जाए ना, हम लोग, हमारा रिलेशन अलग रहता है, हमारा रिलेशनशिप अलग बन जाता है। इट बिकम्स सो हेल्दी, क्लियर एंड क्या बोलते, कंफ्यूजन नहीं रहता है, आगे पीछे बात नहीं करते। पता है मेरी एक आदत है, जो भी मेरे खिलाफ बोलता है ना, तीसरे से पता चलता है ऑलरेडी, ऑफ कोर्स, है ना? क्या करे, फील्ड में खेलने वाले से ज्यादा थर्ड अंपायर क्योंकि रिवाइंड करके देख सकते हैं ना। एक बात हमेशा करो, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1 to 1, किसी तीसरे को आने नहीं दे। रिलेशन कब खराब होते हैं? मैं सिंपल बोलता हूं, जब तीसरा बीच में आता है। नहीं, मेरी जिंदगी तुमको पसंद नहीं आ रही है, इट्स ओके, है ना? मैं नहीं आ रहा हूं तेरे पास कुछ मांगने के लिए, या फिर तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, ऐसा भी तो नहीं है। नहीं बाबा, हम दोनों खुश हैं, तू क्यों बीच में आ रहा है? हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, क्या है वो कन्नड़ा में हमारा सेइंग, गंडा एंटी जगह, हाँ नहीं, कन्नड़ा में कहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा है ना, खा के सोने तक ये बोलते हैं, उतना ही रहता है। इसलिए जीसस बोले, लेट द सन, लेट योर एंगर गो डाउन विद द सन। इतना ही है। ये बीच वाला आके अगली बार सनराइज भी उसी के साथ डाउट है, जाओ ना, प्यार से बात करो, झगड़ा कर नहीं जाना है, ऐसी जरूरत नहीं है। तूने ऐसे नहीं, सिंपल जाके पूछो, क्या बाबा तूने ऐसे बोला मेरे बारे में, क्यों बोला, क्या है? अगर सही भी है ठीक है, माफ कर दे, चल निकल, खत्म। मेक इट इजी, डोंट फाइट। आमेन। दिस इज द लाइफ दैट गॉड वांट्स अस टू लिव। इसलिए वो बोलता है, अगर मेरा भी कुछ है
तुम्हारे जीवन में, तो आज यहाँ बैठ के बात करेंगे। हाँ, कम लेट अस रीजन टुगेदर बोलता है। आओ बैठ के बातचीत करेंगे, वाद विवाद करेंगे, है ना, हिंदी में बहुत अच्छा है, वाद विवाद करेंगे। मतलब तू अपना पॉइंट रख, मैं मेरा पॉइंट रखता हूँ। ये नहीं है कि तेरे को बुला के मैं सिर्फ अपना सुना के भेजूंगा, नहीं, बैठ मेरे साथ बैठ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं जम रहा है, चलो ठीक है, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। Nothing big in that. Hallelujah. Right? So learn. आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, right? So learn to give forgiveness and receive forgiveness. दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जिंदगी में। अगर कोई माफी दे रहा है ना, उसके पूछने से पहले दे दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आके पूछने दो, बाद में माफ कर, छोड़ दो, माफ कर। कभी कभी बोलते हैं, यू नो, वी डोंट नो, वी बोथ आर लाइक दैट। हम दोनों याद भी नहीं रहता हमको कभी। इट्स अ गुड लाइफ गॉड हैज गिवन, इट्स अ फ्री लाइफ गॉड हैज गिवन, इट्स अ बोल्ड लाइफ गॉड हैज गिवन। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया हमें, एंड फॉरगिव अस, एंड फॉरगिव अस। हालेलुया। जैसे रोटी शरीर के लिए, माफी लेना और माफी देना मेरे प्राण के लिए तंदुरुस्ती है। हालेलुया। इफ यू आर नॉट ईटिंग दिस ब्रेड ऑफ गिविंग फॉरगिवनेस एंड रिसीविंग फॉरगिवनेस, यू आर नॉट हेल्दी। आमेन। बाहर बहुत अच्छा दिख रहे होगे, लेकिन अंदर कितना घुट रहे हो यह आपको पता है। हालेलुया। आमेन। Shall we walk in this? Shall we follow this? Yes. दुनिया में अगर कुछ दिखना है, I loved it. किसी ने तीनों का फोटो डाल के भेजा था किसी ने, एक ग्लैडिस स्टेन्स का, दूसरा कौन थे वो, कौन, ये पर्सन तेलुगु वाला मर गया ना, हाँ पकड़े, हाँ, लास्ट वन वाज चार्ली कर्ट। तीनों, फर्स्ट वाज ग्राहम स्टेन्स, सेकंड वाज हाँ पक डाला, देन थर्ड वाज, आई टेल यू दैट इज व्हाट इज वी हैव टू शो। आमेन। हम वो लोग हैं, तुम हमारे लोगों को हमारी आंखों के सामने मारो, फिर भी हमारे मुंह से तुम्हारे लिए आशीष ही निकलेगी, माफी ही निकलेगी। हालेलुया। That is what Jesus has taught us. हालेलुया। बाकी तुम कितना भी अच्छा करो, क्या भी करो, अगर माफ नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? माफी पा नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? माफी दे नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? कितनी बार करना, जितनी बार तुमको यीशु मसीह ने माफ किया, उतनी बार दूसरों को माफ करो। मैं चैलेंज देता हूं, मैं बोला हूं परमेश्वर को भी, राइट? जिस दिन तू मुझे माफ करना बंद करेगा ना, एक एक को चुन चुन के क्योंकि है मेरे पास लिस्ट। हाँ, भूला नहीं, माफ किया हूं लेकिन भूला नहीं हूं मैं, राइट? लेकिन मुझे पता है वो कभी रुकेगा नहीं। हालेलुया। माफ करना कभी रुकाएगा नहीं, तो हम भी कभी माफ करना रुकाएंगे नहीं। हालेलुया। Shall we all stand up?